ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਚਹਿ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ਾ ਕੁਨੀ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾ ਫਰੋਜ਼ਾ ਕੁਨੀ ਅਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਰਹੀ ਮਸਤ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਓ ਹਰ ਦਇਆ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਦੀਨ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੁਥਾਜੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੌਮ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਨਪੇਗੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੀਨ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਦਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਉਡੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜ ਗਏ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਰਸਾ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ, 40 ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ
परिवार का दूजा हिस्सा गुरां तो बादा माता सुंदरी, माता साहिब कौर, भाई मनी सिंह आदि सिखां नाल रोपड़ थाणी हुंदे दिल्ली चले जाते ने। माता गुजरी दे नाल छोटे फरजंद ने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। देखो, कथा सरवण करवाउणी, कथा सुन लैनी, ये कोई औखा विशा नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣੇ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ साहिबजादे महल माता विछड़ी सी। जोरावर और दादी और फतह जो दादी के साथ थे, वो दाएं की जगह चल दिए बाएं हाथ थे। एक दिशा तो दूजी दिशा वाल चल पे ने। बांह दोनों दी मां ने पकड़ी है। कुछ इतिहासकारां लिखिया भी खच्चर सी पास, कुछ इतिहासकारां जी पोश दे सहित घोड़ी लिखी है। खैर, एक खुरजी है धन दी। तुरे जा रहे ने और जदों घर विच कोई घटना वापरदी है, आपां देखदे हां बच्चे सवाल जवाब बड़ा करदे ने, कोई खुशी है जां गमी है। दरिया किनारे झल दे ओले माता जालमा कोलों बचाउंदी होई बच्चियां नूं लिजा रही है। पैंडा बिखड़ा है, पत्थर नुकीले ने, और जे ध्यान दो तुसीं ते ये कोमल जिंदा जिन्हां नूं आनंदपुर अंदर दास दासियां ने, खिडावियां ने कदे कदम पुंजे नहीं सी लाउण दिता, अज नुकीले पत्थरां ते चलना पै गया। फिर माता गुजरी भी इन्हां बिखड़े पैंडियां दी हाणी नहीं सी, बच्चियां नूं लैके तुरी जा रही है। अल्लाह यार खां शहीदाने वफा दे विच लिखदे ने, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के वो राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरत माही किधर गए, अब्बा बजा के लश्कर शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शोके जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जोके तुफंग में। माता, साडे शस्त्रधारी सिंह नजर नहीं आउंदे, दरिया दे कंढे, सरसा दे कंढे छड्ड के पता नहीं किधरे गए ने। ओ बादशाहां वर्गा ठाठ सी साडे बाप दा, ओ नजर नहीं आउंदा। सरसा दे कंढे असीं वड्डे भाइयां नूं जंग लड़दियां वेखिया सी। इन्ने रुझ गए सन तुफंग चलाउण दे विच, रफलां चलाउण दे विच, साडा चेता ही भुला दिता उन्हां ने। वार वार दादी नूं पुछदे ने, दादी इस दुखां लद्दी घड़ी दे विच सिदक दी मूरत बनी निक्कियां जिंदां नूं हौसला दिंदी तुरी जा रही है। आखण लगे, मां जे जंग जित के बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह आ गए ना, साडे पिता जी आ गए नाल, साडियां मातावां आ गईयां, असीं उन्हां दे नाल बोलना ही नहीं है। सानू रोस है इकल्लियां नूं इस बिखड़े पैंडे ते छड्ड के चले गए ने। हुण सुभाअ है मापियां दा, जदों बच्चा रुस जावे ते गल ला के मनाउंदे ने। साहिबजादे कहिंदे, मां जे गल ला के सानू पिता मनावे, भाई मनाउण, माता मनावे, असीं मनना नहीं है। अल्लाह यार खां उस दृश्य नूं चित्रदा है, जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे,
करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमें गले लगा के वो कहेंगे बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जान हार। माता वो सानू आखणगे मन जाओ, पर असी मनना नहीं है। एक दूजे नाल गल्लां करन दोने साहिबजादे भी, जे उन्हां गल नाल ला के गलवकड़ी चो छड्डिया ही ना भी ये मनना ही पवेगा तुहानू, असी की करांगे। ते दूजा साहिबजादा जवाब दिंदा है, इकरार लवांगे। कहंदे इकरार की लओगे? अल्लाह यार खां उत्थे उन्हां दे अल्फाज बयान करदा है, इकरार लेंगे सबसे भूलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के जाना ना फिर कभी, हमें अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको और रुलाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बे इख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। इकरार लवांगे भी अगे तो सानू ऐसे बिखड़े पैंडे छड़ के ना जाओ। दादी ने गल्लां सुनियां, गुफ्तगू सुनी है। बारे दिगर फारसी विच कहिंदे ने वार वार, एक तो बहुती वार, दूसरी वार, तीसरी वार। ऐसे बचन जदों बच्चियां कीते मां सुनदी है। एडा वड्डा मां दा जेरा है, सिर दा खसम भारत वर्ष दियां लखां माइयां नूं रंडियां होण तो बचाउंदियां वारिया सी। माता गुजरी ने आप विधवा हो गई। एदी अख चों मोती उदों नहीं डिग्गा जे गुरु तेग बहादुर प्रभु है ना। गुरु गोबिंद सिंह ने प्रभु कहा, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका खुदाया है। गुरु तेग बहादुर खुदा है, रब दी मूरत है, ते रब दी पत्नी तो फिर माया खवाउंदी है। माता गुजरी भी आद शक्ति है। ये छोटी मोटी कोई माई ऐसी अजमत नहीं रखती भी इन्ना घाटे बंदा सौदा करे भी आप विधवा होके लखां नूं वसा लवे। ये ओ माई है जिन्हें आप घाटा सह के भारत वर्ष दियां बच्चियां दी मांग सुनी नहीं होण दित्ती। तुसीं देवी लभदे हो, माता गुजरी नों वड्डी कोई देवी नहीं दुनिया ते। पर बच्चियां दे बचन सह सुभा सुने, सुते सिद्धी कहंदे वैराग प्रगट हो गया। दुख दा समुंदर मां अंदर भी उठिया, साडियां अखां चों वह तुरदा है, मां अंदर पी गई, तुरी जा रही है और सोचदी है मना, ये मासूम जिंदा ने, मैं अपने सिर दा खसम वारिया सी धर्म दी राखी दे लई, वो मेरा सी। ये बच्चे मेरे पोतरे जरूर ने पर हैन मेरे फरजंद गुरु गोबिंद सिंह दे, मेरियां नूहां दे बच्चे ने, ये उन्हां दी अमानत है। मैनू इन्हां लई बड़ा दुख है भी किधरे गुरु कियां दी अमानत मेरे हथों मुगल ना खो लैण। देखो परिवार दे विछोड़े दा, प्यारे दे विछोड़े दा दुख दुनिया च सब तो वध के है। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने विछोड़े दा दुख इन्ना मुश्किल है सहन करना। तुसीं एक मोचना लै लवो, तुसीं जंबूर लै लवो, किसे दा मास नोच के सुट दिओ, उन्नी दर्द नहीं है जिन्ना दर्द परिवार दे विछोड़े दा है। साधुआं नूं जिन्ना दर्द अपने खसम तो, अकाल पुरख तो विछोड़े दा है। परिवार विछड़िया सी ते माता दे अंदर ये ख्यालात चल रहे सन। अल्लाह यार खां लिखदे ने, दरपेश अनकरीब कोई इम्तिहान है, खतरे में दिख रही मुझे बच्चों की जान है। मां सोचदी है बड़े इम्तिहान दिते ने,
सिर दा साईं वारिया पिसर बहुआं विछड़ गईयां। जापदा है जिवें मेरे ये पोतरे भी विछड़नगे, ये हालात बननगे। प्यारे पति को पहले ही मैं हूं कटा चुकी, कुदरत तेरी है सब्र मेरा अजमा चुकी। ऐ खुदा तू अजमा के वेखिया है मैनू, मैं तेरे भाणे विच कदे दखल नहीं दिता। खिड़े मथे मैं सिर दा साईं तोरिया सी, मैं नहीं डोली। ठीक है मैनू मोह बड़ा है मेरे पोतरियां दा, पर जे किते पति वाली घड़ी मेरे पोतियां ते आ गई ते मथे त्यूड़ी मैं फिर भी नहीं पावांगी। तेरे हुक्म दे उत्ते फिर भी मैं रोस नहीं करांगी, गिला नहीं करांगी, भाणा मन्नांगी। नाम गुजरी है उस माई दा ते वाकया ही सारा जीवन भाणे च गुजारिया है उसने। और रब दी मूरत सी माता, अपना जतन करदी है भी मुगलों की नज़र बच्चों ते ना पवे। झल दे ओले ओले बच्चों नूं लैके तुरी जा रही है। शामां पै गईयां 7 पोह दियां, डरावना जंगल, सुनसान रस्ता, जंगली जानवर ने। 7 पोह दी रात 1761 बिक्रमी संमत नूं माता पिंड ਚੱਕ ਢੇਰੇ पहुंची है, जिथे एक सतलुज ते सरसा नदी दे सांझे मिलाप ते पत्तन है। उथे एक कुमा माशकी नाम दा मलाह, माशकी मलाह नूं कहिंदे ने, माशी भी कह दिंदे मलाह नूं। वो गरीब बेड़ी चलाउंदा सी, राहियां नूं पार लाउंदा सी, गुजारा करदा सी। फट टुट के सौ जाना, नींद आ जानी। अज देखदा है कुछ अजनबी चेहरे आए ने। नमस्कार कीती है। माता जी ने जदों दस्या गुरु गोबिंद सिंह दी माता हाँ, ये उन्हां दे लाल ने। हालात वेख के बड़ा वैराग कीता। जदों तुसीं गुरु कीआं साखियां पढ़दे हो, उत्थे भी नाम इहदा कुमा माशकी है। करीम बख्श असल नाम है, पर जे पिछे झात मारो तो यह बंदा करमू करके इतिहास विच प्रचलित सी ते धक्के नाल इहनूं मुगलों ने करीम बख्श बनाया सी, मुसलमान बनाया सी। जदों भाई दुन्ना सिंह हंडूरीए नूं पढ़दे हो, गुरु गोबिंद वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। महाराज दे 52 कवि प्रचलित ने, जिन्हां चों महान कवि भाई नंद लाल होए ने, अहीर जी होए ने। इदां ही भाई दुन्ना सिंह हंडूरीआ सी। उस कवि दी जिहड़ी लिखत है चार साहिबजादे विच प्यारा सिंह पदम ने जो संपादक कीती है, वो जिक्र करते ने, एक सक्का हिंदू तह आही, तुर्क जोर तह जन्म वटाही, कुम्मा ते कीमा तह कीना, तिस ही कै ग्रह वासा लीना। ओदी कुली विच टिके ने। कवि राज भाई संतोख सिंह दी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भी लिखते ने। सौद्रव पुराना नाम है सतलुज दा। कहंदे श्री गुजरी विच सियंदन के, जुग नंदन के नंद संग चढ़ाई, ताहे सुभाख करी समझावन, ले अगवान चले सहाई, एक दू रात कहूं बस कै तट, सौ द्रव के गमने पिखाई। कहंदे एक दो रातां सतलुज दे कंढे रहे ने। हुण मलाह कुम्मे माशकी नूं जदों सारी गाथा माता जी ने दसी है ना, कहंदा तुसीं टिको
मैं पिंड विच जाके भोजन का प्रबंध करदा। उत्थे एक ब्राह्मणी सी माई लक्ष्मी, ओदे घर गए, उन्होंने जाके दसिया, हनेरा पसरिया सी, भोजन लै आए। वो कह रही है भी मैं सुबह भोजन लैके दर्शनां नूं आवांगी। रात का भोजन कुम्मा माशकी माई कोलों लैके कुली विच आ गया पत्तन ते। भोजन छकाया, माता जी साहिबजादियां दा आसन कुली विच लाया, आप कुली दे बाहर लेटिया है। अज नींद नहीं आउंदी। जेड़ा थक टुट के सौ जांदा सी, क्योंकि बेड़ी चलाउणी कठिन कारज है, चप्पू लाउणा कठिन कर्म है, अज नींद नहीं आ रही। ते सारी रात तारियां दी लोए सोचदा है, ऐ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे परिवार दा रंचक मात्र भी कोई रौला नहीं सी मुगलां नाल। जे गुरु तेग बहादुर साहब ने सीस दिता ते इंसानियत नूं जंजू नूं रखिया, ते अज तुसीं ते तुहाडा परिवार गरीब गुरबे दी रखिया दे लई, भारत वर्ष नूं निजात दिवाउण दे लई किवें जंगलां दे विच भड़कदे फिरदे हो। ऐसे माड़े हालात तुहाडे बन गए, बेघर होना पै गया। किहदी खातर? इंसानियत लई। तुहाडा एहसान लोकाई किवें लावेगी? किवें कर्ज अदा करांगे तुहाडा? ये गुरु दा बिरद है, सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। गुरु परोपकारी है, गुरु गरीब गुरबे दी दीना दी मदद करन वाला है। रात सोचदियां लंघी है, सुबह हुई, माता लक्ष्मी भोजन लैके पत्तन ते पहुंची है। बड़ी सेवा की साहिबजादियां दी, माता गुजरी दी। भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया कथा गुरु जी के सुतन दी विच लिखदे ने, माई लक्ष्मी नूं खुश होके माता गुजरी ने खुरजी चों कुछ गहने कढ के दिते, कुम्मे माशकी नूं कुछ पैसे दिते। बस इत्थे गंगू नाल है ते गंगू दी नदर पै गई है खुरजी विचले धन ते। गंगू वफादार सी, कोई दो राय नहीं, पर रंचक मात्र समय विच बंदा भड़क जांदा है। पता ही ना चलिया कदों माया दा जोर पै गया, नमक हराम होण ते तुल गया बंदा है। 7 पोह दी रात कढ़ी सी माता ने, 8 पोह दी सवेर कुम्मे माशकी ने पत्तन पार करवा दिता है। माता जी दोवें साहिबजादे ते नाल गंगू है। रोपड़ वाल नूं गुरु साहब दी खोज विच इत्थों तुरे जा रहे ने। तुरे जांदियां जदों रोपड़ दे नजदीक पहुंचे ते गंगू बेईमान ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दिती। कहंदा माता रोपड़ शहर है ते शहर दे विच तुहानूं पता है भी कानून दी सख्ताई वध हुंदी है। जे आपां शहर दे विच दी लंघे, पिंड सहेड़ी तुहानूं मैं लैके इस रस्ते गया तो गिरफ्त विच आ सकते हैं, सजा मिलेगी। मैं जानदा रोपड़ तो बाहर दी एक रस्ता जांदा है मेरे पिंड नूं, ते आपां उस रस्ते चले जाइए। असल विच इहदे मन च इह बेईमानी सी भी जे रोपड़ वाल दी गए ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा सेवक निहंग खां पठान उस इलाके विच रहिंदा है। वो साहिबजादियां नूं माता नूं मेथों लै लवेगा, गुरु ताईं पहुंचा देवेगा, ते जिहड़ी माया है मैं किवें लुट सकांगा। सो उस रस्ते जाण ही ना दिता। मेरा पिंड सहेड़ी कहंदे मां इत्थों नजदीक है, घर चलो आपां खोज लभ लवांगे गुरां दी, हालात ठीक होणगे तुहानूं उत्थे पहुंचा देवांगा। शाहीदाने वफा विच लिखदे ने अल्लाह यार खां गंगू रसोइये ने, जो देखा यह इज़्ज़ते राब, माता के सतगुरु की किया इसने यह शिताब,
गांव मेरा करीब है, चलिए वहां जनाब, बांगे उठा के आइए, पीछे मेरे शिताब। शिताब कहते छेती छेती फारसी विच, जल्दी मेरे नाल चलो। बाणी ने एक गल कही है, मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा। मन खोते वर्गा खोटा है, पता नहीं कदों पछंडा इधर मार दवे ते कदों इधर। चंगा भला नमक हलाल बंदा पैसा वेख के नमक हराम करन ते तुल गया। अपने आका दी माता नूं, आका दे साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करवाउण ते तुल गया, पैसा लुट्टण ते तुल गया। ऐसे ਇਹਦੇ मन की भावना बन गई। जदों गुरबिलास पातशाही 10वीं पढ़ते हो ना, भाई सुखा सिंह लिखते ने, होतो मसंद नीच एक पापी, बिप बंस चंडार सो खापी, और रोपड़ ते वहो राहो भलाई, निजपुर को लै गयो कसाई। रोपड़ तो रस्ता बदल के अपने पिंड वाल लै गया ते हुण पहुंचे ने 8 पोह दियां शामां नूं पिंड काई नौर। ये पिंड काई नौर गंगू दे पिंड सहेड़ी तो 2 किलोमीटर है। रात उत्थे पई, उत्थे एक तलाब बनिया है, तलाब दे कंढे माता साहिबजादे ते गंगू टिक गए ने। अजकल गुरुद्वारा बाबे शहीदां बनिया है। ये सारी रात जागदा रहा भी किसी तरह दा लगे ते धन लुट के दौड़ जावां, पर माता जी सुचेत रहे, इहदा दा ना लगा। एक रचना है सिंह सागर 1827 विच पटियाले भाई वीर सिंह जी बल ने लिखी सी। वो जिक्र करते ने, जोरावर सिंह फतेह सिंह गुजरी माता साथ, काई नौर के तल के वसे एक पुर रात। एक रात काई नौर दे तलाब ते कटी। ये 8 पोह दी रात है। इनू हुण कंपैरेटिवली चमकौर दी गढ़ी वाल लै तुरो इतिहास नूं। उधर 8 पोह दी रात गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दुश्मन दा घेरा चीरन लई जंग लड़ रहे ने, ते माता जी ते साहिबजादे काई नौर ने। ते पिंड काई नौर जे तुसीं रोपड़ विच दी सरसा सतलुज दे पत्तन ताईं उहदी दूरी वेखणी है, पिंड ਚੱਕ ਢੇਰੇ ताईं ते 27 किलोमीटर बनती है। रात लंघी, 9 पोह दा दिन चढ़िया है। छोटे साहिबजादे माता उन्हां नूं गंगू कहंदा, मां पिंड मेरा नजदीक है, मैं तुहानूं लै के चलदा। सहेड़ी पिंड वाल लै तुरिया, पर शातर बड़ा है। अपने पिंड सीधा घर नहीं लैके गया। पिंड दे बाहर 1 किलोमीटर दूर एक ढक सी उजाड़, जिथे जंगली बूटे ने, काह काना है। उथे बिठा के आखन लगा, माता जी मैं पिंड जाके हालात वेख आवां, फिर तुहानूं ले जाना। लिखते ने भाई रतन सिंह जी भंगू, महान इतिहासकार, लै मातो निज गयो ग्राम, सहेड़ी थे उसको नाम, जाए उजाड़ मद ढक बहाई, चीज सभी उन करी कबजाई। ढक विच बहा के आप पिंड नूं तुर पिया। नहीं सी चाहुंदा भी मेरे नाल मुगलिया फौजां बागी गुरु दे बच्चे ते माई नूं वेख के मैनूं कोलू पीड़ देण। और दूसरी तरफ परिवार तो विछोड़ा भी नहीं चाहुंदा भी माया लुटनी है। जे माया लुट लवां तो फिर गलों लावांगा इन्हां नूं। बहा के ढक विच आप पिंड जांदा है, जाके की सुनदा है भी डंके दी चोट ते मुगल पिंडां विच ऐलान कर रहे सन भी गुरु गोबिंद सिंह चमकौर दा घेरा चीर के निकलिया है। जेड़ा ओदे परिवार दी मदद करेगा कोलू पीड़िया जावेगा, जेड़ा गिरफ्तारी करवा दवे गुरु गोबिंद सिंह दी ओदे परिवार दी मूहों मंगिया इनाम पावेगा।
सारी दिहाड़ी माता जी उड़ीकदे रहे, गंगू ना आया। माता ने उत्थे ढक दे पास एक कुटिया तकी है, वो कुटिया च बह गए तो वो कोई मस्त फकीर सी, कोई महात्मा, उन्हें आके तकिया, अजनबी चेहरे वेखे ने। माता जी दे चेहरे दा नूर देख के सिर झुका के पुछदा है, माता जी इत्थे किवें बैठे हो? ते माता जी ने नीति तो कम लिया, गुरु गोबिंद सिंह दी मां है, ये दसना ठीक नहीं हर एक नूं भी साडा परिवार किहड़ा है ते असीं कौन आ। आखण लगे बस इदां ही एवें ही बैठे हैं। ही लै गया, घर दे विच जाके आसन लवा दिता। शहीदाने वफा दे बोल ने, खेड़ी में जा बिराजे यह नमक हरामी भी ने, इत्थे कृतघण भी बड़े ने। गुरु ग्रंथ साहिब मोहर लाउंदे ने, असंख चोर हराम खोर, बड़े हराम खोर ने दुनिया ते, जेड़े किसे दा कीता नहीं जानदे, जेड़े किसे दे कीते एहसान नूं भुल जांदे ने, अकृतघण लोग। ये उन्हां चों एक सी बंदा, ये भुल गया। अंग्रेजी दा टीकाकार लफ्ज वरतदा है, कहंदा देयर आर काउंटलैस एम्बलैजरर्स, नमक हरामी बड़े ने इत्थे और दुनिया विच ने। आपां कई बार शायद मैनू बोझ बड़ा जापदा है, वो मैनू मुश्किल आउंदी है। सो ज़हन विच गल टकाओ, जे कोई किसे ते एहसान करदा है ते कदरदानी करनी सिखो। लोग भुल सकते ने, खुदा दे दरबार विच वड्डा गुनाह है, कृतघणता उहदी सजा जरूर मिलदी है। ते रब दी डांग नूं समझदे हो चंगी तरह तुसीं, दिखदी नहीं, जदों पैंदी है फिर उठण जोगा नहीं छड्डदी किसे नूं। ये सिद्धांत है दुनिया का। नमक हरामी निकलिया गंगू, शहीदाने वफा दे बोल ने, माता के साथ डब्बा था एक जेवरात का, ललचा जिसे था देख के दिल बदसिफात का। कहते हैं जब वक्त हुआ आधी रात का, जी में किया ना खौफ कुछ आका की मात का। मोहरों का बदरा और वो डब्बा उड़ा गया, धोखे से बरहमन वो खजाना छुपा गया। बरहमन बदसिफात ये उन्हां लोकां लई वरतिया जांदा जो औगणां नाल भरे होए ने। कहंदे आका दी मात दा लिहाज ना कीता, आका दे बच्चियां दा लिहाज ना कीता, पैसे लुका ले, खुरजी लुका लई। भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया भी लिखदे ने, भई रैन खुरजी तिह लीनी, जाकर चोए मैं गड्ड दीनी। टोए विच खुरजी दब दिती। गुरबिलास पातशाही 10वीं भाई सुखा सिंह भी लिखदे ने, पाशे जो चंडार कृत कीना, खुरजी काढ़ धरन गड्ड दीना। जिन्ने कि इतिहासकारां ये समा लिखिया, मैं तुहाडे नाल सारियां दी सांझ पा रिहा, क्योंकि कई बार कह दिता जाता नहीं जी मुगलों का ही सारा दोष सी, चंदू नूं बेगुनाह साबित कर दिओ, गंगू नूं बेगुनाह साबित कर दिओ। कोई जहांगीर नूं बेगुनाह करके कल्ले चंदू नूं रगड़दा, कोई वजीर खान नूं गुनाहगार साबित करके कल्ले गंगू नूं रिहा करदा। कई गंगू नूं रिहा करदे ने, चंदू नूं रिहा करदे ने, जहांगीर ते इहनूं वजीदे नूं रगड़दे ने। नहीं, दोने पाखी हिस्सेदार ने शहादतां विच। गुरु अर्जन साहिब दी शहीदी विच हथ गंगू दा, चंदू दा है, नाल एक मुर्तजा खान दा है, जिहदे हवाले कीता सी जहांगीर ने गुरां नूं। जहांगीर ने हुक्म आप सुनाया सी मौत दा। जदों किते तुसके जहांगीरी पढ़ो ना, उहदा उलथा हिंदी च मिल जांदा, शायद फारसी दी पुस्तक है, उहदे च आप लिखदा मैं मौत दी सजा सुनाई है। इदां ही इत्थे मुगल भी बराबर दे हिस्सेदार ने और गंगू भी बराबर दा हिस्सेदार है। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बाबत सारे इतिहासकार लिखदे ने, कहंदे ओ बदसिफात बंदा सी गंगू। लिखदे होए अल्लाह यार खां कहंदे ने बदजात,
बद सिफात वो गंगू नमक हराम। टुकड़ों पे सतगुरु के जो पलता रहा, मुदाम घर लेके जो शहजादों को आया जो बदलगाम था, जर के लूटने को किया सब यह इंतजाम। दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया, दुश्मन भी जो ना करता वो यह काम कर गया। लानतां रहिंदी दुनिया तक पैणियां ने उसनूं। कई बार भावना विच बह के आपां दूजे धर्मां नूं नीवा विखाउण लग पैंदे आ। इत्थे धर्म नूं इनवॉल्व ना करिया करो। हिंदू मत विचों ही टोडरमल सी जिन्ने सोना विछा के साहिबजादियां दे संस्कार लई जगह खरीदी सी और गुरु का सिख बनिया सी। ते बनिया गंगू भी गुरु का ही सिख सी, पर वेखो गरक गया, डिग गया पैसे ते। और सिखां विच भी बड़े गरकण वाले पए ने। डोगरियां नूं किथे जगह है इतिहास विच? लानतां ही ने। साडा खालसा राज जे गया है ते डोगरियां करके गया जिहड़े सिख बने सन। हर दीन विच मजहब विच बुलंद हस्ती भी है ते ऐसे बदसिफात लोग भी ने जिन्हां दा नाम लिया ही दीन नूं वटा लग जांदा है। सो हर धर्म विच ऐसे लोग होया करदे ने। खैर, माता जी ने आख्या गंगया चंगा कीता ही पैसे सांभ लए, हालात बड़े खराब ने। कहंदा माता जी की गल करदे हो? मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी भी इत्थे चोर उचक्के बड़े ने, माया दी खुरजी तुहाडे कोल सी। जे हुण कोई लै गया है ते मेरा नाम ना लाओ, मैं कोई माया नहीं तुहाडी सांभी। ते मैं तुहानूं पहलां कहा सी भी मैं राखी नहीं कर सकदा तुहाडी माया दी, ये तुहानूं सांभ संभाल करनी पैनी है। तुसीं सुत्ते सी, कोई माया लै गया। माता कहंदी गंगया मेरा फरजंद विछड़ गया, मेरियां नौहां विछड़ गईयां, छोटे छोटे लाल गुरु गोबिंद दे मेरे कोल अमानत ने। हालात मैनू ठीक नहीं जापदे। ऐसे हालातां विच तैनूं की लगदा है बुढ़ी माई दी अख लगी होवेगी? मैं अकाल पुरख दी याद विच सारी रात जागियां, बच्चे आराम कर लैण छाती ते लटा के मैं पई होई सा। तैनूं की लगदा है मैं कुछ तकिया नहीं? गल ये नहीं है भी तू मोहरां चुरा लईआं ने ते मैं तेथों ओ लैणियां ने। असल गल ये है भी जे मैं कौम लई सनातन मत ने मंगिया ते पति दान कर दिता, तू मोहरां मंग लैंदा, ते तो कई मोहरां वार दिंदी। की लोड़ पई सी तैनूं चोरी करन दी? मैनूं कोई लालच नहीं मोहरां दा। तिल मिला उठिया झूठा बंदा तुहानूं पता तड़फदा बड़ा है। शहीदाने वफा दे बोल ने। कहंदा एक ते तुसीं चोर कहंदे हो, दूसरा मेरे घर विच रहिंदे हो। मैं मुगलिया सल्तनत नाल मत्था लाउण वाला कर्म कर बैठा हाँ, बागी गुरु दे बच्चियां नूं पनाह दे बैठा हाँ, मैनूं उधरों भी सजा मिल सकदी है। हुण तुहानूं विखावांगा गंगू की कर सकदा है। हुण मतलब निकल गया सी, पैसा इहदे हथ विच सी। हुण इहनूं लोड़ नहीं है गुरु परिवार दी। अल्लाह यार खां लिखते ने वाहिगुरु के नाम पे कुल मालो जर भी दूं, खलकत के फायदे को लुटा अपना घर भी दूं। गर्दन पति की दे चुकी अपना सर भी दूं, खुशनुदिये अकाल को लखते जिगर भी दूं। गंगया सब वारिया सी, मोहरां भी वार दिंदी, पर तू नमक खा के ये गलत कीता है। तड़फदा होया गंगू माता दे रोकदियां रोकदियां दौड़िया है सहेड़ी पिंड दे चौधरी वाला। बाणी ने एक उदाहरण दिती है, कहंदे माया विच बंदा कुत्ते वांग हलक जांदा है ते हलके कुत्ते नूं की रोग है, वो मालक नूं वढ लैंदा है। ते माया विच हलका होवे बंदे नूं ते तुसीं रोज खबरां च पढ़दे हो ना, एक बच्चे ने बाप दा गल घुट दिता, मां दा गलूआ घुट दिता, माया विच हलक हो जांदा बंदे नूं। ज्यों कूकर
ਹਰ ਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਵੇ ਦਹੋ ਦਿਸੋ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭਖ ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਲਕਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰਿਹਾ, ਚੰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਕਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਘੱਲੇ, ਜਾਓ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੈ ਕੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਜੋ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਰੰਗੜ ਦੋਏ ਭਾਈ ਉਨ ਆਨ ਮੁਰਿੰਡੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਬਹਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਂਭੇ ਇੱਕ ਗਇਓ ਸਿਰਹੰਦ, ਫੜਾਏ ਬਜੀਦੇ ਕਰ ਦਏ ਬੰਦ। 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਟਿਕ ਗਿਆ ਮੋਰਿੰਡੇ, ਇੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਏਦਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਏਦਾਂ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? 3 ਹਿੱਸੇ ਫੌਜ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਜੇ ਝੋਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਿੰਦਾ ਮਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੇ, ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਐਸੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਬਰ ਤੱਕ ਰੋ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੌੜਿਆ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਮ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਲਾਰਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਖੋਂ ਮੋਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ ਖੂਬ ਦਾਲੇਰੀ ਸੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੜੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ ਐਸੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂਡੀਵ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਨੱਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਲਾ ਗਿੜਗੜਾਵੇਗਾ।
ये बच्चों की गिरफ्तारी ते रोवेगा, ये नहीं हो सकता। गुरु विकारां तो मुक्त हस्ती नूं कहा जाता है। खैर इन्हां अपना जतन किया, रात सिपाही तोड़ दिते ने। वजीद खान ने सरहद तो भी पहुंचो मंजिल मार दे। सुबह पहले टाइम माता नूं बच्चियां नूं बेड़ियां च जकड़ के सरहद लै आओ। 10 पोह की रात मरिंडे थाने लंघी। गुरुद्वारा कोतवाली साहब भी बनया है उत्थे। 11 पोह की सवेर हुंदी है। 11 पोह की सवेर वो जिहड़े सिपाही गए सन मरिंडे, उन्हां बच्चियां नूं पैरां विच बेड़ियां, हत्थां च हत्थ घड़ियां लाइयां, कैद विच लैके माता नूं तुर पए ने। रतन सिंह भंगू जी लिखते ने, यह सुन फौज नवाब चढ़ाई, लए सिरहंद उन ढिग मंगाही। भाई दुन्ना सिंह हंडूरिया हजूरी कवि गुरु गोबिंद सिंह लिखते ने, राहे के गए सरहंद मझारी, हाथन मद हथोड़ी डारी, पद में ताहे जंजीर धराए, कोई कहे बालन मरवाए, कोमल जय हत्थां विच हथ घड़ियां, जिवें कोई चोर डाकू होण, कोमल जय फुल्लां वर्गे चरनां विच कंडियां वर्गियां बेड़ियां कसियां, और लिया रहे ने सरहंद वाल। वजीर खां दे सावें जदों ये परिवार पहुंचण की खबर आई, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच कवि संतोख सिंह लिखते ने, सब को तवे हटाए कर, ले गयो तहां ही बुरज बिखे, उतरे थिरे जननी दुख माही। कहंदा इन्हां नूं बुरज विच कैद कर दिओ, साहिबजादियां दी अज ही मेरी कचहरी विच पेशी होवेगी, मैं कचहरी लाउंदा हां। ठंडा बुरज पता क्यों कहंदे ने उसनूं? जिवें अजकल अफसरां दा एसी गेस्ट हाउस हुंदा है ना, इदां वो ठंडा बुरज सी। बड़ा उच्चा बुरज है, उपर कौले कड्डे हुए ने पत्थर दे, विच चिनाई नहीं है, हवादार है, केवल कौले ही नहीं। हुण घेरे घेरे एक नदी नुमा झील पुट्टी हुई है, जिहदे च पानी छड्डिया है। वो जदों गर्मियां विच जल टकराउंदा है, हवा दे नाल हवा ठंडी हुंदी है, हवा सीत हो गए, जिहड़ी गर्म लू सी वो वजदी है बुरज नाल, बुरज ठंडा हो जाता। ते वजीद खां उत्थे गर्मियां कढिया करदा सी उपर बैठ के। यह है पोह दा महीना। 6 पोह की रात आनंदपुर छड्डिया, 7 पोह की रात चमकौर की गढ़ी बापू पहुंचे। पिंड चक ढेरे छोटे साहिबजादे माता गुजरी पहुंची। 8 पोह की रात साहिबजादे माता काई नौर रुके। 8 पोह शहीदी हुई वड्डे साहिबजादियां दी, जो कल नूं पावन दिहाड़ा है वड्डे साहिबजादियां दी जंग चमकौर दा शहीदी दा। हुण दूसरी तरफ 8 पोह की रात किला गढ़ी गुरु गोबिंद सिंह छड़दे ने, दुश्मनां नूं चीरदे ने, रात मंजिलां मारदे, सुबह 9 पोह नूं माछीवाड़े जंगल विच पहुंचदे ने। उत्थे भाई दया सिंह मान सिंह मिलदे ने। इधर 9 पोह की रात माता गुजरी, इत्थे गंगू दे पिंड सहेड़ी है। 10 पोह की रात मरिंडे ठाणे है। 11 पोह की रात ठंडे बुरज विच कढ़नी पैनी है। सिपाही आए, माता बच्चियां नूं तैयार कर, कचहरी लगी है, सूबा सरहंद दा हुक्म है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद माता दी बुकल विच ने, ते सह सुभा माता कहंदी है, ये चोरां लई डाकुआं लई कचहरियां लगदियां ने, कोमल जिंदा नाबालग बच्चे, इन्हां लई की कारण है भी कचहरी लाई हुई है? कहंदे मां असीं ते हुक्म दे बच्चे हैं। आपां कई बार भावना च कह सकदे भी ये सिखां ने इतिहास लिखिया, इन्ने जुल्मी नहीं सी मुगल, ठंडे गुंबद च बिना कपड़ियां तो बिना भोजन तो थोड़ा छोटे बच्चों नूं रखिया होवेगा। अल्लाह यारखा मुसलमान है, वो आप लिखदा है, गुंबद था जिस मकाम में मुकैयद हजूर थे,
दो चांद एक बुरज में रखते ज़हूर थे। कहंदे उच्चे बुरज विच गुरु गोबिंद सिंह दे दो चंद वर्गे टुकड़े कैद सन। बड़ा दुख भोगना पिया है। 11 पो 1761 बिक्रमी संमत नूं पहली पेशी होण लगदी है। सिपाही कहंदे माता हुक्म है साडे नाल तुरो, क्यों कचहरी लगी है, क्यों नहीं असी नहीं जानते। मां ने बच्चों वाल ध्यान दिता, बच्चों ख्याल रखियो तुहाडियां रगां विच प्रतख हर गुरु अर्जन दा लहू है। बाणी की कहंदी है गुर अर्जन प्रतख हर। गुरु अर्जन रब वर्गा नहीं है। रब वर्गा आपां संतां नूं भी कह दिंदे, कोई साधु सेवा करे कहने जी रब वर्गा, सच बोले कहने जी रब वर्गा, बंदगी करे कहने जी रब वर्गा। रब वर्गे साधु बेअंत ने दुनिया ते, पर रब एक ही है। गुर अर्जन प्रतख हर, ओ रब गुरु अर्जन बन के दुनिया ते आया है। सो प्रतख लफ्ज वरतिया है, ये गुनाह है गुरु अर्जन नूं रब वर्गा कहना। गुरु अर्जन आप खुदाया है, ये गल ध्यान विच रखियो। एक इंग्लिश का टीकाकार लिखदा, कहंदा दैट एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु अर्जन। जो साडे जोत बन के समाया ना साह, ये साहां दा वाली अकाल पुरख ही गुरु अर्जन बन के आया दुनिया ते। तुहाडे अंदर ओदा लहू है बच्चो, तती तवी भी उसनूं तत्या नहीं कर सकी। तुसी डोलना नहीं है। तुहाडे दादा गुरु तेग बहादुर नूं औरंगजेब तोड़ना चाहता सी, तोड़ ना सकिया, मोड़ ना सकिया, सिरड़ नहीं छड्डिया, उन्हें सिर दे दिता। तुहाडे पिता गुरु गोबिंद सिंह नूं 22 धार दे राजे औरंगजेब दियां लखां फौजां झुका ना सकियां। भावना यही रखनी है, जो तन चीरै अंग न मोरों, पिंड परै तो प्रीत ना तोरो। कहंदे चीरे जाइए, कटे जाइए, वड्डे जाइए, धर्म नूं पिठ नहीं देनी। ये सिक्खी दा सिद्धांत है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। ये सिद्धांत रखना है। कहंदे मां फिक्र ना कर, जेड़ी कृत दादा ने कीती है ना ओही करांगे, सिदक तो नहीं डोलांगे, सिर कटे जा सकते ने। माता दा प्यार सी, सिर ते हथ रखिया, मथे चुमे, कचहरी वाल तुर पे। बुरज तो वेंदी है, अकाल पुरख नूं ध्याउंदी है, किरपा रखी बच्चियां दे उत्ते। पैंतड़ा वरतिया है मुगलों ने। तुसी वेखिया है पुरानियां हवेलियां नूं, किलियां नूं वड्डे दरवाजे हुंदे सन, और मुख दरवाजे दे नाल एक छोटी बारी, छोटा दरवाजा हुंदा है। सरदल थोड़ी उच्ची होवे ते ओ आपां खुला जान के कई बार जदों अंदर लंघदे आ ते पहलां सिर अंदर कढ के वेखीदा किते ठेडा ना लग जाए, अंदर वेखीदा भी की है। हुण महाराज पातशाह दे साहिबजादियां लई दरवाजा छोटा बंद कीता गया, वड्डा खोलिया, और सिपाही कुछ अगे ने कुछ पिछे ने। जिहड़े अगे ने वो नीति नाल लंघे, अगां पहलां सिर कढ़दे ने, फिर कदम चुकदे ने। और विਉਂਤ घड़ी गई भी जदों साहिबजादे सिर झुकाउणगे, सामने वजीर खां दा तख्त है, आखांगे सजदा कर दिता, मुसलमान बन गए, रौला पै जावेगा। गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद मुसलमान हो निबड़े ने, हुण भारत वर्ष दे हिंदू आपे जंजू ला देणगे। पर ये तुहाडे साडे न्याणे नहीं जेड़े ये दुनियावी चालां विच आ जांदे। इन्हां दियां रगां च ओदा लहू है जिन्हों भाई नंद लाल कहंदे, इस लोक दा भी खसम है ते परलोक दा भी खसम है। बरदो आलम शाहा गुरु गोबिंद सिंह, दोहां आलमां दा मालक है गुरु गोबिंद सिंह। साहिबजादियां दे चरनां विच तिल्लेदार जोड़े ने, सामने वजीदे दा तख्त है, चरण अंदर रखे, पहला गलूआ पिछे झुका लिया, छाती पिछे झुका लई भी दरबार वाल ना झुके। जदों चरण लंघे, चरना दी जेड़ी ठोकर है, तिल्ला है, तख्त वाल होया, वजीर खां तिलमिला उठिया। ये चाल कामयाब नहीं हुई। ये गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद ने, जे 14 ते 17 साल विच जंग लड़ सकदे ने ओदे लाल,
ते ये 7-9 साल दे जेड़े छोटे लाल ने, इन्हां दा वजूद भी मैं समझदा हाँ कैसा भरिया है। सार दा वजूद है लोहे दा इन्हां दा। दरबार विच कदम पाउंदियां ही गज वज के गुरु लाई है। उंगलां ते दंदियां वड्डे वजीर खां, तुहाडे बाप दा दरबार नहीं है जिथे फतेह गजाई जाती है। सुचानंद बोलिया, दीवान अपनी जुबान नूं लगाम दिओ, नवाब नूं सलाम करो, ते जिस गुरु गोबिंद सिंह दी फतेह बुलाउंदे हो, मैदाने जंग विच चमका खोज मिटा दिता है। वजीर खां ने टुकड़े टुकड़े कीते ने उसदे। वो छोटे छोटे लाला ने जवाब दिता सी, पूरे ते प्रधान निवावह प्रभ मथा, नैनी देखो गुर दर्शनों गुर चरणी मथा। साडा सिद्धांत है एक अकाल अगे झुकना, दूजा अकाल दे स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह अगे झुकना, तीजा कोई दर नहीं है जिथे असीं सजदा करिए। ये सिर केवल गुरु गोबिंद सिंह अगे झुकदा है, दुनियावी बादशाह दे अगे साडा सिर नहीं झुकदा। सुचानंद बड़ा मुश्किल विच है। कदे पढ़ियो गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। नवाब गरजिया, साहिबजादियो पिता तुहारा, गढ़ चमकौर घेर गह मारा, घेर के तुहाडा पिता मारिया है। कवि संतोख सिंह कहंदे, अगों लाल आखण लगे, साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह ओ बुलंद हस्ती है जिसनूं मारिया नहीं जा सकदा। जिवें कोई आसमान नूं कैद नहीं कर सकदा, जिवें सुमेर पर्वत चलाएमान नहीं हो सकदा, जिवें सूरज नूं इंसान जकड़ विच नहीं लै सकदा, गुरु गोबिंद सिंह ओ तूफान है जिसनूं थम्मिया नहीं जा सकदा। बाणी दे बोल ने, सब ते वड समरथ गुर देव, गुरु इज ऑल पावरफुल। ਜਿਹੜੇ अवतार ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ। ਉਹ ਜੋਤ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵਧੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਕੈਦ ਥੋੜਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਓ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ। तेरी फौज आपस विच ही कट वड करके मिट गई। उस सूरमे नाल लड़ना, उसनूं जित लैना बंदे दे वस विच नहीं है, वह खुदा दा दूजा रूप है। बड़ा हैरान है वजीर खां। कहंदा चलो मन लिया तुहाडा पिता बच गया। अगे आखण लगा, तह तुमरे द्वै भरात प्रहारे, संगी सिंह सगल सो मारे। तुहाडे 2 भाइयां दे टोटे टोटे कीते ने असीं, उन्हां दे संगी मिटा दिते ने असीं। साहिबजादे कहंदे, वजीर खां मरदा ओ है जो धर्म दी झोली कुछ पा ना सके, दीन लई परोपकार ना कर सके। घर बैठा है मंजे ते मौत आ गई, शरीर भी मिट गया, नाम ही मिट गया। शहीदां दा शरीर मिटदा है, नाम अमर रहिंदा है। वो अमर होए ने, शहीद मरदे नहीं हुंदे। आ तुहाडे पिंड च किन्ने मोए होणगे ते किन्नियां मर जाना, कोई याद करदा है? कोई नहीं याद करदा। दीन लई किन्ने मिटणगे, किन्ने मिटे ने। समागम उन्हां दे मनाए जांदे ने ते मनाए जांदे रहणे ने। किहड़ी मौत दा डर दिंदे हो कबीर, जिस मरने थे जग डरै मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमा नंद। महापुरुषां नूं तिल मिला उठिया वजीर खां सुच्चा नंद। सोचदा है विਉਂਤ बदली जावे, ये डरदे नहीं। साहिबजादिओ शहजादियां दे डोले मिलणगे जवानी विच, तख्तो तौस मिलणगे, वड्डे मरातबे मिलणगे। सिੱਖੀ चों की खटिया जे दुख तो लैदा। कहंदे वजीर खां गल सुण, झोली एक है,
ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਇੱਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਅੱਡਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਵੇਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣਗੇ, ਵਿਕ ਗਏ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਰੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ, ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਜ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਡਣੀ ਅੱਡਣੀ, ਲੰਗਰ ਜੂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਝੋਲੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਖਸਮ ਹੈ ਇੱਕ। ਇੱਕੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਸੇ ਰੱਖੋ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਹੈਂਕੜ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਦਾਤ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਜੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਚਿਰਾਗ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ 2 ਚਿਰਾਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਗਏ। ਸੰਧਿਆ ਹੋਈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਰੈਣ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘੀ। ਕੋਈ ਤਨ ਤੇ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਤਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਪਤਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਛਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਹਵਾਦਾਰ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਸੀਤ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਕਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੋਪੜ ਲੈ ਜਾਣ, ਚਰਖੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
मैं उदाहरण दिना हुन्ना क्योंकि आपां कलयुग विच लोग टुट बड़ी छेती जाने। पंज प्यारियां कहा बाणी पढ़ो, 2-4 दिन पढ़ी, घर विच दुख आ गया, गुड़का साहब पासे रख देना, लै दुख ते कटे नहीं गए। बाणी पढ़न दा की फायदा? ध्यान दिओ की फायदा बाणी पढ़न दा? जदों ऑपरेशन हुंदा है, ऑपरेट करते ने डॉक्टर, ते मन लो किसी दे शरीर विच कोई चीरा आ गया, वढ कट हो गई, कोई 12-14 टंके लगने ने। एक बड़ा दाना परदाना डॉक्टर सी, उन्हें इंजैक्शन लाया, मास सवाया, सुई चुकी ते टंके ला दिते। वो टंके लगन वाले नूं पता ही ना लग्या दर्द होया कि नहीं, जख्म ओडा ही है। एक कमला जिहा हकीम सी, उन्होंने पता पुता बहुता है नहीं सी, उन्हें मास नहीं सवाया, चुकया सूआ ते जिद्दां बोरियां नहीं सींदे मंडी वाले, पा के धागा जिहा दे पट विच दी कढते सूए, 12-14 टंके लाए। 3-4 महलिया ताईं रौला सुनिया वो बंदे दा। दर्द होई है, जख्म होई है, दुख होई है, हर वेड़े विच आउणा है। जिहदे कोल नाम दा टीका है, जिहदे कोल नाम दी दवाई है, जिहदे कोल नाम दी अजमत है, वो नीआं विच चिणिया जावे, नंगियां तलवारां ते नच उठे, ओदा शरीर लूं लूं करके उड़ा दिता जावे, ओदे गलूए चों सी नहीं निकलदी, सुखमणी निकलदी है। ये बाणी दा प्रताप है। और साहिबजादियां दे अंदर बाणी है, जिस करके डोल नहीं रही। ते जिहदे कोल बाणी नहीं, ओदे कंडा भी चुभ जावे ते डॉक्टर लभदा फिरदा है। ते जिहदे कोल बाणी है, वो तती तवी बह के भी कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागा। ये असर है बाणी दा। पर ये दुख हर जगह आउंदा है। एक शायर कहंदा ना, कहना इस दुनिया में कोई बेगम नहीं है, अगर है तो वो बनी आदम नहीं है। कहंदा कोई बेगम नहीं दुनिया ते, जे कोई होवेगा बंदे दी जात नहीं, कोई होर होना है। बंदे नूं ते दुख आउणा ही आउणा है। तुसी रोज पढ़दे हो बाणी विच, नानक दुखिया सब संसार। औरंगजेब नूं गुरु गोबिंद सिंह कहंदे, ओ की सोचदा है भी मेरे महिलां ते दुख दा साया आया औरंगजेब, कि तेरे नाल ये वक्त बेवफाई नहीं करेगा, कि तेरे घर दुख नहीं आवेगा? महाराज कहंदे होना नहीं है, तू कुली विच रह जां महिलां विच रह, ये दुख हर कुली दे उपर आवेगा, ये हर महल दे उपर दी लंघेगा। फारसी विच कहंदे ने, बबी गर्दशे बेवफाए जमा के बरहर बा गुजरद मकीनो मकां। हर मकान उत्ते दुख दा साया आउणा ही आउणा है। बाणी पढ़ लवें ते बच जावेगा, दुख दुख होके नहीं लगेगा। 12 पोह दा सवेरा होया, उसे तरह आसा दी वार पड़ी। जब जार सवैये चौपी नंद नितनेम होया, सिपाही आ गए। शुभ सिक्ख्या दे के माता गुजरी ने तोरिया। भरे दरबार अंदर पहुंच के माता दी सिक्ख्या दा असर, गुरु गोबिंद सिंह दे थापड़े दा करिश्मा, गज वज के फतेह गजाई है। दरबार अंदर सरहंद अंदर तिल मिला उठिया सूबा। कहंदा तुहाडियां साहिबजादिओ इन्ना बेखौफ हरकतां करके तुहानू बुरी मौत मारांगा मैं, जिवें तुहाडे भाइयां नू मारिया है। इस्लाम कबूल कर लवो, जान बच सकती है, दुखां तो बच सकते हो। लोभ लालच दिते गए, हर जतन किया गया, हर पक्ष तो डराया गया, साहिबजादे ना मन्ने। कलमा पढ़ लो, धर्म छड्ड दिओ, जान बच सकती है। मैं कई बार सोचदा हुन्ना, अजकल कई साडे लोग बड़े कमजोर पै गए ने। मैं सिख नहीं कहांगा उन्होंने, सिख विकदा नहीं है। आखे जी ये नीवी जात वाला है, गरीब है जी, इनू पैसे दे के ईसाई बना लिया। पहली गल ते जे खंडे दे बाटे च अमृत छकिया है ते तेरी जात रह नहीं गई, तू सिंह है। इत्थे शूदर कहा सी लोकां बाबे जीवन सिंह नूं, ते गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या सी रंगरेटा गुरु का बेटा। जिदन सीस दिल्ली तो लैके आनंदपुर नूं चलिया बाबा जैता, वो गड्डे जा रहे ने पराल दे लद्दे,
ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇ, ਸੀਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਧੜ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੇ ਜੌਂ ਚੁੱਭੀ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਆਖੇ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਜੇ ਹੱਥ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੰਗਾ ਲੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਚੰਗਾ ਹੰਢਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਈ। ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਕੰਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾਲਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ। ਦੇਖ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੀ ਡੁੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਤੂਤ ਮਾੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਵੇਨਾ। ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤਖਤੋ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਚ ਵੇਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜੜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤਖਤੋ ਤਊਸ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਠੋਕਰ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨੇ ਹਰ ਤਖਤੋ ਤਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਨਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਫਲਾਨੀ ਏਜੰਸੀ, ਟਮਕਾਨੀ ਏਜੰਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤਗਮਾ ਪਾ ਦੂੰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਟਮਕਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਹਊਆ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆ ਬੜਾ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 40,000 ਪਰਿਵਾਰ 1947 ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 30-31,000 ਪਰਿਵਾਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 9,000 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਭੁੱਲੋ, ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 84, ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਕਿੰਨੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ 400 ਸਾਲ 84 ਖੇਡੀ ਹੈ। 400 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ 84 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓਂ ਵੀ ਵਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਸਾਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਤਲੇ ਹੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਕਣੇ, ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ? ਸਿੱਖੀ ਮੁਰਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਰਨ, ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਮੋਢੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਮਿਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਮਣਕਾ ਮਾਲਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰੇਤੀਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦਿਨਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਪੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ ਅਮਰ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋਚਾਨੰਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਫਨੀਅਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਕੇ ਬਾਲਕ ਤੁਮ ਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਗੋਂ ਕੇ ਇਹ ਪੂਤ ਬਖਾਨੋ, ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਆਜ ਯਹ ਆਏ, ਕਰਹੋ ਅਬੈ ਆਪਣੋ ਮਨ ਭਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਟਿੱਕਾ ਤੁਮ ਗ੍ਰਹਿ ਗਇਓ, ਤੁਮ ਹੈ ਸੋ ਮੋੜ ਦਇਓ, ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ੈ ਖਾਤ ਹੋ ਹਮਕੋ ਯਹ ਕਹਿਓ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਤੂੰ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਪਲੂਸ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਹੁਤੋ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨਾਮ, ਕਿਤ ਘੱਲਿਓ ਥੋ ਕਰਨ ਸਾਕ ਗੁਰਧਾਮ। ਇੱਕ ਸਾਕ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਸੀ, ਤਲਵੇ ਚੱਟਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਮਚੀ ਸਾਥ ਜੋ ਲਗੈ ਤਵੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵ ਨੰਗ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਲਕ ਫੂਲ ਧੂਪ ਨਹਿ ਖੇਵ ਨੰਗ। ਛਾਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਛੰਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਖਲ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਸੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਖਲੋਤੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਫਤਵਾ ਲਾਓ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਛਾ ਗਈ। ਸਰਹੰਦ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਉਹ ਖਿਜਰ ਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹਿ ਗਨੀ, ਬੋਲਿਓ ਸੀਸ ਹਿਲਾਏ, ਹਮ ਮਾਰੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰਿਆਂ, ਜੰਗ ਮੇ ਔ ਜਸ ਜਾਏ। ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਜਸ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਉੱਠੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਖਿਜਰ ਖਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਫਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਲੁਭਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰੱਖਣਾ, ਸੀਤ ਜਕੜੇਗੀ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, 2 ਚਿਰਾਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਝ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਵਜੂਦ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ। ਇਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ, ਡਰ ਡਰ ਪਚੈ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਾਰੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦੇ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁਮਲਾਏ ਨਹੀਂ।
मां ने सिर पलोसिया, वार वार मत्था चुमिया, कलावे विच लैंदी है, दोवें हथ हथां विच घुटदी है ते पुछदी है, बच्चिओ अज किहड़ा इम्तिहान सी? कहंदे मां शहजादियां दे डोले, तख्तो ताज, हीरे जवाहरात सब देना चाहुंदे ने, सिक्खी खोहणी चाहुंदे ने। ते बच्चिओ तुसी की कहा? कहंदे मां असीं कहा दादे गुरु तेग बहादुर दे पोते आ, सिरड़ नहीं छड्डांगे, शरीर छड्डना साडे लई इदां है जिवें सप कुंज ला दिंदा है। मां खेड़े विच आ गई। मां नूं एक गल दा आनंद है, डोले नहीं, दूसरा अंदर दुखां दा सागर उठिया है, मेरे पोते कल नूं नहीं रहणगे। खैर संध्या सी, रह रास होई, साखियां सारी रात चलियां। 13 पोह दा ऐसा दिन चढ़िया जेड़ा इस रूहे जमीन ते किधरे नहीं चढ़िया। माता 12 पोह दी रात बाबा मोती राम मेहरा जी ने बेनती की, तरले लए सिपाहियां दे, बच्चियां नूं मिलण दिओ, नहीं मिलन दिता गया। जेड़े सूबा सरहंद दी कैद विच हिंदू कैदी सन, उन्हां नूं भोजन छकाउण दी नौकरी करदा सी। माता पत्नी नाल घर जाके गल कीती है। गल करके ना माता पत्नी नूं आखण लगा, बाबा मोती राम मेहरा भी ओ लालची लोक ने, कुछ दईए, बच्चियां दी सेवा कर रहा, भुखे प्यासे ने। वो मां ते पत्नी ने जेड़े थोड़े गहने गट्टे सी वो दिते, सिपाहियां नूं दे के बाबा मोती राम मेहरा ने दुध छकाया और इहदी सजा मिली सी शहीदी साहबजादियां दी। तो बाद विच कोलू विच सणे परिवार भुचंगी पीड़ दिता सी बाबे मोती राम मेहरा ने। धन मोती जिन पुन कमाया, गुर लाला ताई दुध पिलाया। सी उस महापुरुष नूं नहीं भुल सकदे। गुरुद्वारा बाबा मोती राम जी फतेहगढ़ साहिब तो लाइन लंघ के बसी पटाणा नूं जांदे रस्ते ते स्थित है, उत्थे आपां सिजदा करदे हां। 13 पोह दी सवेर है, आसा दी वार लगी, 5 बाणियां जपजा सोईए, चौपी नंद दा नितनेम होया। सिपाही आ गए लैण, जालम हकूमत दे नाल टकराउणा है। मां बच्चियां नूं तैयार करन लगी है। अल्लाह यार खां ने उस तैयारी नूं दर्शाया है। कन खोल के सुनियो, अज माई कैसा लाड करदी है बच्चियां नाल। जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी कर दूं, जरा मुंह दोला तो लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। कहंदे मां अज बड़े लाड़ नाल तैयार कर रही हैं, की गल है? कहंदे बच्चों, जदों बच्चे घोड़ी चढ़दे ने ना, ये मां लई सब तो सुभागा दिन हुंदा है। ते किवें वटने मले जांदे ने, बच्चे दा रंग रूप चमके तैयार कीता जांदा है। अज दुनिया ते बड़ा विलखण विआह होना है। अगे कोई 7 ते 9 साल की उम्र विच अपनी मर्जी नाल घोड़ी मौत दी नहीं चढ़िया। अज मौत नूं तुसीं तीवीं बनाउणा है, मौत नूं तुसीं वरना है। ते जे अज ताईं ऐसा इतिहास नहीं बनया, ऐसे लाड़े नहीं होए मौत नूं विआउण वाले, ते तैयारी भी ऐसी किसी ने ना कीती होवे, अज ऐसा सज धज के तुसीं उस कटहरे विच जायो, ये मरहबा मरबहा मुगल कर उठन। जे मौत नूं वरन वाले अगे किधरे ऐसे शहजादे नहीं तके, जे ऐसी लाड़ी कदे शहजादियां नहीं विआई, ऐसा इतिहास किसी ने नहीं तकिया, ते ऐसी अजमत, ऐसा खिड़ाव, ऐसा नूर गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दे चेहरे दा मौत नूं वेख के है। ऐसा चाह भी लाड़ी मौत वाल वेख के किसी लाड़े नूं नहीं चढ़िया। कहंदे हत्थां नाल कंघा कीता, दमाले सजाए, कलगी लाई, मत्था चुमिया
और अखीरली वार मना मूही प्यार दिंदी मथा चुम के कहती है, बस प्यो दादे वाली करनी कर जायो, चुकना नहीं है। दोवें तुरन लगे, कहंदे मां कदे तेरी गोद तो विछड़ के नहीं रहे, चले आ दादे दी गोद मल्लांगे, पर देरी ना लाई, जल्दी साडे कोल आ जाई। तुर पए ने। जिन्ना चिर नजरी आए माता वेंदी रही, फिर कौले नाल ढोल आके चौंकड़ा ला के बह गई, क्योंकि जेड़ा दुख दा सागर अंदर उठिया है उन्होंने पीना भी ते आए ना रब दा नाम लैके। कह रही सी, जीतो राणीए तेरे पुत्र अज मौत वरन चले ने, बड़ा अगमी जिहा विआह अज होना है, कले ने मेरी गोद छड्ड गए ने, अपनी गोद विच उन्हां नूं साਂਭ लई, फिर मैं आउणी आ। ऐसे बोल गलूए चों निकले, अगमी मंडलां वल मां दी सुरती चली गई। साहिबजादियां दरबार विच जाके फतेह गजाई, आखण लगे अखीरली वार वजीदे होनी, ईन मनो मुसलमान बनो। बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह एक दूजे नूं कहंदे ने, आखण लगे पहुंचियो समा मोहे अस जोवा, गुरु पितामे पर जिम होवा, साबत रहन की बात है नीकी, कहो भराता तुम अपने जी की। जोरावर सिंह कहंदे, बाबा फतेह सिंह जी दादे वाला समा आ गया है, एक बन्ने इस्लाम दूजे बन्ने मौत, किधर नूं जाना है। बाबा फतेह सिंह ने 7 साल की उम्र च जवाब दिता, फतेह सिंह सुन पुत्र दीना, धर्म पितामे जिम रख लीना, शुभ जस ते जग पूरन कीना, 3 लोक मह शाका चीना। बाबा फतेह सिंह कहंदा, भाई दादे ने जो कीता सी ओही करिए, फिर शरीर ते घर भी मिटना एक ना एक दिन, अज दीन लई मिटेगा नाम अमर रवेगा। 3 लोकां च दादे वांगू जय जयकार होवेगी। अखीर इन्हां साहिबजादियां ने शहीद होण दा फैसला लिया। धू के मौत दे मूंह विच लिजाना होर बात है, आप तैयारी कीती, दसो मकतल किहड़ी है, किथे चिणना है, नीआं विच असीं तुहाडे अगे लाके चलदे हैं। तुर पे मुकर्रर जगह ते खिलारिया गया। जालम जिउंदे साहिबजादियां दे इर्द गिर्द इट्टां चुणन लगे। जदों इट्टां चिणियां जा रहीआं सन, वजीर खां वार-वार गेड़े लाउंदा सी, ईन मन लो, ईन मन लो, क्योंकि ओदी वड्डी हार सी ये। गुरु गोबिंद सिंह दे लाला नूं एडा वड्डा सूबा निभा नहीं सी सकिया। गोडियां ते कंध आउंदी है। जलाद कहंदे इट झाड़ के लगेगी। वजीर खां कहंदा खजाने दी इट खराब नहीं करनी, इन्हां दे गोडे चपणियां कांडियां तेसियां मार मार उड़ा दिओ। मार मार के कांडियां तेसियां चपणियां वढ दित्तियां गईयां। कैसा वजूद है, अल्लाह यार खां लिखदा है, डोले नहीं गलुए चों जकारे छड्ड के कह रहे सन, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम सरों पे उठा चले। कहंदे की समझदे हो, नीआं च चिणे चले आ, मिटन लगे हैं? कहंदे नहीं, मिटन नहीं लगे, सिक्खी दी नींव किते डोल ना जावे, सिर दे के अगे नूं भी पक्की कर देन लगे हैं। ये मुसलमान एक लिखदा है सिखां दे अगमी कौतकां नूं। महाराज गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे एक बचन कढ़दे ने, गद्दी से ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया से जालमों का निशान तक मिटाएगी। असीं शरीर करके मिटन लगे हैं सूबिया, चंगियाड़ी बन के खालसे दे अंदर बलना ही असीं। और जदों खालसे अंदर भांबड़ मचिया भी एडे जालम लोक ने मुगल,
नाबालग बच्चे शहीद कर दिते। इन्हां जालमां दे उल्ट ऐसा तूफान उठेगा खालसे दा, तुहाडे दिल्ली दे तख्त नूं साड़ के स्वाह करेगा। ये सच बात है। यही रोस सी गुरु गोबिंद सिंह दा थापड़ा लैके माधोदास बंदा सिंह बहादुर बनया। वजीदे दे 2 टुकड़े फतेह सिंह हथों होए और भारत वर्ष ते खालसा राज दा झंडा झुलिया। इसे रोस चों ये भांबड़ मचिया सी खालसे दे अंदर। इट्टां छाती ते आईयां, ठोडी ते आईयां। अल्लाह यार खान लिखते ने, ठोडी तक ईंटें चिंदी गई, मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही माथे पे छा गई, हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई, लखते गोबिंद के वो दोनों छुपा गई। मथे तो जिवें इट्टां लंघियां ना, अखीरली वार साहिबजादे खलोते एक दूजे नूं वेख लिया। अखां ते इट आवे, उस तो पहला एक नजर वेख के ते दोवें कहंदे एक दूजे नूं, भाई चल हुण दादे दी गोद उडीकदी है। अखां मीट लईयां, मथे तो कंध लंघ गई। अल्लाह यार खां कहंदा, साहिबजादे कादे छुपे ने? सिखो तुहाडा सूरज ते चंद छिप गया, गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद छिप गए। तूफान आया, कहर वरसिया, भुचाल आया, नीआं डिग पईयां। को के शाशल बेग बाशल बेग ने कतल किया। अल्लाह यार खां ने एक हूक कढ़ी है दिल चो, कहंदा जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर ईंटों का ढेर थी। इयों समझो साहिबजादे कादे नीआं च चिणे गए। वजीर खां ने मुगलिया राज दियां नीआं पुट लईयां। फिर इट ना इट खड़की सी बंदा सिंह बहादुर हथों। अज ना जदों 13 पोह दा दिन चढ़िया, शहीदियां होईयां, ते दीवान दा रुतबा रखण वाला टोडरमल जिहड़ा किधरे वपार विच बाहर गया सी, वो आया सरहंद। नूं पता लग्या बच्चे उथे कैद ने ठंडे बुरज। दौड़ के गया, जिन्ने चिर नूं पहुंचिया है भाणा वरत गया सी। माता गुजरी बैठी है। ये ठीक है, जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट ना आवे। पीर जिहदे अंदर खुदा प्रगट है उन्हों दर्द नहीं हुंदा। भुख तिख तिस ना व्यापई, जम नहीं आवे नीर। बाणी पढ़न वालियां नूं ना भुख डुला सकदी है, ना दुख डुला सकदा है। ये मैं तां बाणी दीआं पंक्तियां ले जाना। कई बार कह दिंदे इतिहास रौं विच बह के सुना लिया प्रचारकां, बच्चे किदां पीड़ जर गए। ये जरे के नहीं जरे, गुरु ग्रंथ कहंदा है जिहदे कोल बाणी है वह इदां ही पीड़ जरदा है। सारा इतिहास बाणी दी कसवटी ते है, कुछ भी आसे पासे नहीं। जेड़े दौड़दे फिरदे ना भी बाणी दी कसवटी ते गल करो जी, मैं 100 वार बंगला साहब तो मंजी साहब तो ऐलान किया भी आओ जे थोड़ा मोटा दिल दिता रब ने, बह के विचार करो केड़ा इतिहास है जेड़ा बाणी दी कसवटी ते नहीं। असल मूर्खो, तुहानू समझ ही नहीं बाणी दी कसवटी की है। वो बाणी ते पढ़दे नहीं कमले लोग। इन्हां नूं लगदा भी साहिबजादे इन्हां वर्गे चमदे लिफाफे सी। इन्हां नूं लगदा भी गुरु अर्जन साहब इन्हां वर्गा ही सी भी तत्ता तवा रोटियां पकाउंदियां लग जावे ते चीक झंगाड़ा पा दवे। रब दा वास्ता ही तू एक मामूली कुजा है, गुरु अर्जन सागर है। सागर साहिबजादे सागर ने, ते सागरां दा अंत कुजे नहीं पा सकदे। अपनी औकात कई बार आपां भुल जाने हैं। गुरु दा रुतबा बड़ा उच्चा है। बुलबुले छल्लां सागर दे तुल कुछ भी नहीं हुंदे। गुरु समुंद नदी सब सिखी, आपां सारे नदियां गुरु सागर है। गुरु परिवार सागर है। ये अजमतां गुरु के विखाउंदे रहे ने, विखाउंदे रहणगे। साहिबजादे मिट गए। दौड़ के टोडरमल ठंडे बुरज चढ़िया, धाहा मार के माता गुजरी दे चरनां विच विरलाप करदा होया आखण लगा, मां साडी माया दौलत शोहरत रुतबा किसे काम ना आया, तेरे लाला नूं बचा ना सके।
मां कहंदी टोडर मल जी हौसला करो, ठीक है भाणा वरत गया है, मैं पति भी तोरिया सी, वो भी समा गुजार लिया, वैसे भी मेरा समा जिन्ना मुकर्रर सी परमात्मा दे दर तो जिन्ने सवास मिले सी, कण काले सब दिवस सास, नह बढ़न घटन तिलसार, वो समा मुक गया है। चौंकड़ा ला के माई बैठी, अगम्मी अजमतां दी मालक साडी मां ने सवास चढ़ाए, कुर्बान हो गई सिखी तो, और टोडर मल जी चरना विच बैठे वैराग कर रहे थे। देखो ये रिद्धियां सिद्धियां वाले आप चोला त्याग देंदे ने। याद रखियो मां ने कीरने नहीं पाए, आत्म हत्या हुंदी है दौड़ के किते सिर मार लिया, बुरज तो छाल मार दी नहीं। जेड़े महापुरुष ने वो जानते ने, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसे का हुक्मे बुझ सुआवें। उन्होंने पता है कदों आना कदों जाना, वो अपनी मर्जी नाल शरीर त्याग दिंदे ने। अष्ट सिद्ध नव निध एह करम प्राप्त जिस नाम देहे, रिद्धियां सिद्धियां दे मालक हुंदे ने। माता जी भौर उडारी मार गए, टोडर मल जी वैराग विच ने। पता लगा साहिबजादियां दे शरीर दी बेअदबी करन लई हंसला नदी दे कंढे शरीर सुੱਟ दिते गए ने। लांतां वजीर खान नूं सरहंद पाउंदा सी, चैन नहीं सी आउंदा इस दुष्ट नूं, पर वो अंदर जिहड़ा चंडाल बैठा सी इहदे ओ इनू इन्ना जलील करवावेगा इन्हें सोचिया नहीं सी भी लोग रहिंदी दुनिया तक लांतां पाउणगे। बदसिफात बंदे कोल टोडर मल जाके कहंदा जमीन चाहिदी है, संस्कार करना है, कहंदा माया दो ते लै लवो। किन्नी माया, जिन्नी जगह चाहिदी है कहंदा विछाओ। सोने दियां मोहरां टोडर मल ने विछाइयां। इतिहासकारां नूं जदों पढ़दे हो ना तुसीं, इत्थे बड़े बड़े विद्वान महात्मा महापुरुष इतिहास लिखते ने, बाणी लिखते ने, कुछ विद्वान पुरुष डॉक्टर जन्मी किताबां लिखते ने। अकाल स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चियां दा माता दा संस्कार करन दे लई उस महात्मा ने, बाबा टोडर मल ने, जो सी हिंदू पर सिखी विच आया सी, सिख धर्म अपनाया सी जिसने, उन्हें जगह खरीदी है। मोहरा खड़े रोकते विछाउणियां पईयां ने। माता जी साहिबजादियां लई वो जगह उस महापुरुष ने लैनी कीती। अच्छा तुसीं हैरान रह जाओगे कीमत जान के उस समय दी। शहीदां दी कतार विच मूहरे खलोती माता गुजरी ते साहिबजादियां लई जो अशरफियां विछाइयां, एक चौधरी जमींदार दी जगह सी जिहड़ी टोडर मल ने खरीदी सी, उहदा नाम चौधरी अत्ता सी। उस जगह की कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपया उदों बनी है, उन्नी क जगह की, थोड़ी जी जगह की। प्रिंसीपल सतबीर सिंह हुणा इहदे बारे भी लिखिया है। खैर जगह लैके संस्कार किया। ये तकरीबन ही इउं समझ लो ये शहीदी हफ्ता 6 पोह तो शुरू होके 13 पोह तक चलता है। और पोह दे महीने सिखां विच इन्ना अदब है गुरु के परिवार दियां शहीदियां दा। कहंदे कोई खुशी दा त्योहार आवे ते ओ नहीं सी मनाउंदे हुंदे। मैं तुहानूं उदां ही आधारण दवां, नाम ही इदां होवे, घर विच कोई बच्चा शहीद होवे जां मर जावे, आपां उत्थे उस दिन कोई बैंड बाजा थोड़ी वजाउने। पुराने समय च ऐसी भावना सी, पोह दे महीने लोग विआह नहीं सी रखदे, क्योंकि उस महीने साहिबजादियां मौत नूं वरिया सी, मौत नूं विआया सी। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। ते नाल मैं भी कह दवां, वैराग करना ठीक है, सिक्खी दा दर्द जागदा है, पर ढैंदी कला च नहीं जाना। ये साखियां सुन के चढ़दी कला विच पॉजिटिवनैस जाना है। इस धर्म नूं कौन खत्म कर सकदा है? जेदे धर्म दे बूटे दियां जड़ां विच गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दा लहू डुलिया होवे, वो बूटा कदे सुक नहीं सकदा। ऐसी अगमी
ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਏ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।